People usually ask me what is my field of specialization, and when I tell them that I'm a medical doctor, I'm not a PhD doctor, they are really very surprised. And the next question they ask me is that what are you doing in this field? So there are 3 or 4 questions that I would like to answer, which people usually ask me. The first question is that what am I doing in this field? Why have I decided to form this organization, IR Next? And the third question is that what is the purpose of this conference here? So these are basically the 3 questions that I'm going to address now. I really feel honored and I'm humbled that I'm addressing, although I'm a computer illiterate person, I admit that. I'm totally computer illiterate, but I'm addressing an august gathering of people who are experts in computer science and IT technology, IT. So I really feel that I'm really honored. So the first question is that what am I doing in this field? Although I'm an ophthalmologist, which means that I'm an eye surgeon, but more than an ophthalmologist, I'm a social worker, and I'm proud of saying that I'm a social worker, and that is one of the reasons why I've decided to come into this field. And by the way, I am a practicing doctor. It's not that I've just obtained a degree and I'm doing other businesses. I'm a practicing doctor. I've got my own eye hospital and I do regular practices. So the reason that I am in this field is that the person who introduced me to this field was Admiral Arifullah Hussaini. Some of you are here because of him. We formed an organization, the Nation Building Initiative, some 3 years ago. And this is the very place where we held a conference in December 1918. And we presented a policy to the then Minister of IT, Dr. Khalid Maqbool. He was the chief guest at that time. And we are lucky to have the current IT minister, the federal IT minister here with us. So history is repeating itself. We have a few friends from that conference, and one of them has joined me, whom I met in that conference only, and that is Shariq Hashmi. At that time, he had recently returned from UAE, and he wanted to do something about blockchain, but he didn't know where to start from. So we have recently joined hands and we have formed this organization. The other person that I would like to mention here is the person whom I share my dreams with, is Ahsan Jabbar here. Ahsan, can you please raise your hand so that everybody knows who you are? And we have a common dream to share, and maybe we can talk about it later at the end of my speech. And that is that we want to develop an IT city, something on the pattern of Silicon Valley or something on the pattern of Kerala or Huawei city in China and the IT city in Dubai. So that is one of the dreams that I have just kept the fire alive, and that has not died down. So let me assure you, Ahsan, and others also who are with me for the last 3 years, that inshallah one day we'll succeed in building up that IT city, inshallah, very soon. The reason why I came into this, like I said, was एडमिरल आरिफुल्लाह हुसैनी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने इस मुल्क के लिए बड़ा काम किया और हम बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे उन्हीं की वजह से जो है ना वो मिले हैं। तो उनका तो इंतकाल हो गया, बट वी हैव टू कीप हिज मिशन अलाइव एंड वी हैव टू कैरी ऑन फ्रॉम हियर। मकसद ये था कि जैसे कि हमें फील्ड में, मेरी फील्ड के अंदर, व्हेन अ पेशेंट, डाइंग पेशेंट कम्स टू मी विद मल्टीपल गन शॉट्स एंड ब्लीडिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ टू स्टॉप द हेमरेज, एंड द सेकंड थिंग दैट वी डू इज़ टू मेंटेन द आईवी लाइन एंड रिप्लेस द ब्लड दैट हैज़ ऑलरेडी बीन लॉस्ट। तो हेमरेज जो है इस मुल्क का, वो 2 चीज़ें हैं, वन इज़ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द अदर इज़ करप्शन। तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, 4.5 million people every year adding up to this country. So you cannot provide, no government can provide education, health, water, sewerage, electricity to 4.5 million new people every year
on top of the backlog that still exists. But that's a sensitive topic, so I'm going to leave that alone. And corruption जो है वो again, that is not the domain of this conference. लेकिन अगर digitization हो जाती है तो corruption can massively be reduced. So this is where the IT business comes in. अगर complete जो है paperless environment हो जाती है, जैसे कि अभी one of our panelists ने कहा था कि हमने सिर्फ paper free नहीं, printer free भी जो है ना दुबई की तरफ जा रहे हैं. तो अगर इसी तरह की चीज़ जो है ना यहाँ पे भी हो जाती है और digitization हो जाती है, तो corruption can be reduced to like 20% only. It can be reduced by 80%. ये मेरे एक सेक्रेटरी फाइनेंस में थे सिंध गवर्नमेंट में, आई डोंट वांट टू नेम हिम. उन्होंने पीएचडी करके आए थे वो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से अमेरिका में, एंड ही वाज अ मिसफिट इन दिस ब्यूरोक्रेसी एंड ही वाज वेरी वोकल. तो वो कभी भी 3 महीने 4 महीने से ज़्यादा जो है ना वो एक डिपार्टमेंट के अंदर नहीं रहते थे. तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रपोज़ किया ये चीज़ कि इसको डिजिटाइज़ कर दिया जाए सारी चीज़ें. जो आबाद ने भी हमें लास्ट मीटिंग के अंदर प्रपोज़ किया था कि हम ये सारे के सारे जो है ना नक्शे और सारी की सारी अप्रूवल्स, ये सारी की सारी हम जो है ना वेबसाइट पे और थ्रू इंटरनेट कर देते हैं, तो सारा करप्शन जो है ना बिल्डिंग कंट्रोल का ये सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा. इसी तरह से इन्होंने भी जो है ना प्रपोज़ किया कि अगर ये डिजिटाइजेशन हो जाती है तो एक जो इनएफिशिएंसी है दैट कैन बी एक्सपोज्ड एंड दैट कैन बी ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड. कि पेपर आया है आदमी के पास आज और वो जो है ना 5 हफ्ते तक उसको दबा के रखा हुआ है, क्यों? There has to be a reason for that and he has to justify that. If it is digitized, then he is answerable to different things. नक्शे जो हैं वो अगर आबाद के सारे ने जो प्रपोज किया था, उन्होंने तो यहाँ तक प्रपोज किया था कि हम सॉफ्टवेयर भी डेवलप करके दे देंगे, डोनेट करेंगे. तो ये एक जो हेमरेज रोकने का तरीका है दैट इज़ डिजिटाइजेशन. और कम से कम गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में कंप्लीट पेपर फ्री एंड प्रिंट फ्री कर दिया जाए, जैसे कि यूएई में ये लोग कर रहे हैं. तो एक तो ये हुआ कि हेमरेज रोकना. अब दूसरा जो है, जब हमारे पास पेशेंट आता है, पता नहीं अमीन भाई आप जो है 1990 में, आई डोंट नो इफ़ यू वर इन एमक्यूएम और नॉट, इफ़ यू रिकॉल, आई वाज सर्विंग एज अ डॉक्टर इन द एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन जिन्ना हॉस्पिटल इन 1990. और एमक्यूएम का एक कैंप था जो कि शराय कायदीन पे था, उसके ऊपर फायरिंग हुई थी. एंड injured patients bleeding from all over the body came to me, and like we were just 5-6 doctors in the accident and emergency department at that time, and people were coming in tens and hundreds. I have seen people with open abdomen and intestine visible. I have seen people with jaw blown up, people with visible brains. तो उसमें you don't have to panic, घबराना नहीं है, ठीक है. सिर्फ आपको यू हैव टू कीप योर नर्व्स इंटैक्ट और हेमरेज रोकें, ब्लड वॉल्यूम रिप्लेस करें, ट्रांसफर द पेशेंट टू द इमरजेंसी ओटी एंड फॉर द सर्जन टू टेक ओवर. यू जस्ट हैव टू स्टेबलाइज द पेशेंट. पाकिस्तान की भी इकॉनमी इस वक्त जो है ना वो इट हैज़ ब्लेड अ लॉट एंड वी आर इन अ वेरी सीरियस कंडीशन. इसका जो हल है, वो जो पहला सोल्यूशन है वो आईटी है, जो क्विक फिक्स है दैट इज़ आईटी. जो हम ब्लड अरेंज करने में भी 10 मिनट लगते हैं, तो आप प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स जो है ना वो लगा देते हैं, विच इज़ रेडिली अवेलेबल. यू कैन ट्रांसफ्यूज दैट इमीडिएटली एंड यू कैन रिस्टोर और रिवाइव सर्कुलेशन. तो वो जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है वो आईटी है. लेट मी गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. द आईटी एक्सपोर्ट ऑफ वियतनाम in 2010 was only $3 billion. In 2015, it rose to $47 billion. And guess what? In 2020, it was $107 billion. Vietnam. We have a better education system here than in Vietnam. We have more talented people here. And the best thing that we have, that we have a very good diaspora spread all over the world. So we can get business from the Pakistani diaspora. So if Vietnam can improve from 3 billion to 107 billion in 10 years, so we can improve from like 2 billion to 200 or 300 billions in 10 years.
I don't see why we can't do it. So IT is the first plasma expander, plasma volume expander. So if we work on IT, I think we can save the economy, and maybe we have reached, I think, if I'm not wrong, a little over 2 billion per year. I think our target should be that within 2 years we should be at least 10 billion, and in the next five years we should have a target of at least $50 billion export of IT. And that can only be achieved if we adopt the emerging technologies. The old things are over, like the third generation industrial revolution. ठीक है, लोगों को जो ना jobs मिल जाएंगी और they can earn from that. Let's keep that also going. But we have to concentrate on the industrial revolution 4.0 and the next. And this is the reason why we named this organization IR, Next Industrial Revolution. And since fourth industrial revolution will be outdated in 5 years, we'll have the fifth revolution and the sixth and so on. So that's why we named this organization as IR Next. So it is in vogue all the time. तो IT के ऊपर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं और emerging technologies के ऊपर अगर इन्वेस्ट किया जाता है तो वो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है. That is the only solution. We have to think about the future. और ये emerging technologies आज जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं blockchain, आज से 5 साल के बाद आपका सारा finance और banking, ये सारा का सारा जो transactions हैं ये सारे blockchain पे होंगे दुनिया में. जो industry will be run by AI, machine learning, robotics and IoT. So we have to plan from right now if we want to industrialize our country. आज अगर काम करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सारी फील्ड्स में तो 5 साल के बाद जो है ना वो हम लोग रूल कर रहे होंगे इंशाल्लाह. इसी तरह से मार्केटिंग जो है वो डाटा साइंस और बिग डेटा पे कुछ चला जाएगा, उसको हमें डेवलप करना है. वर्चुअल रियलिटी जो है ना ये सारा लैंडस्केपिंग, रियल स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ये सारी की सारी वर्चुअल रियलिटी के ऊपर चली जाएगी. ये सारी की सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके ऊपर के आज हमें काम करना है, आज अपने बच्चों को पढ़ाना है और इसको डेवलप करना है. तो दिस इज़ द रीज़न वाई वी डेवलप्ड फॉर्म दिस ऑर्गेनाइजेशन IR नेक्स्ट. और इसके अंदर हमने एक चीज़ और जो हम शुरू कर रहे थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें BSV के साथ हमारा ताउन हुआ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर इंट्रोड्यूसिंग ब्लॉकचेन एंटरप्राइज. ब्लॉकचेन वैसे पढ़ाई जा रही है, PF कीट में हमारे पास लोग हैं, ब्लॉकचेन पढ़ाई जा रही है इवन बहरिया यूनिवर्सिटी में और 1-2 और जगह फास्ट में भी पढ़ाई जा रही है. लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है ना वो नहीं हो रही हैं. वी में प्रोड्यूस PhDs और हम जो है ना बैचलर्स में भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से आगे जाएंगे क्या, कहाँ और करेंगे क्या, इसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए इंडस्ट्री के अंदर. तो जो BSV है इसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है. वी हैव साइंड अ ट्राइलैटरल एग्रीमेंट विद BSV ब्लॉकचेन, IR नेक्स्ट एंड कराची यूनिवर्सिटी, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम ऑफ ब्लॉकचेन. इट्स बेसिकली a 4-month theoretical कोर्स. तो क्लासेस जो है ना दे आर हाफ वे थ्रू, 2 महीने से हो रही हैं, और फिर POCs जो है ना 2 महीने की होंगी. तो लड़कों को हैंड्स ऑन दिया जाएगा, एंड दोज हु क्वालिफाई दे विल बी हायर्ड रिमोटली, दे विल बी वर्किंग फ्रॉम हेयर फॉर इंडस्ट्रीज अब्रॉड. अगर यहाँ की इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है तो वी कैन प्रोड्यूस ब्लॉकचेन डेवलपर्स एंड वी कैन इंट्रोड्यूस देम टू द इंडस्ट्री हेयर. तो ये हमारा मकसद है कि अभी तुमने ब्लॉकचेन में शुरू किया है. वी हैव स्टार्टेड विद 1 यूनिवर्सिटी एंड वी आर इंशाल्लाह गोइंग टू एक्सपैंड दिस प्रोग्राम टू एटलीस्ट 5 यूनिवर्सिटीज़ and at least 1 or 2 academies also. So this is blockchain. Now we want to introduce artificial intelligence and others and have the application. We want to teach and train people in applied technologies, not just theoretical technology. तो उसके लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस अरेंज की. We have invited I guess around 10 universities, representatives from 10 universities have participated in this conference. So we want to act as a bridge between the industry and the academia.
हमारे साथ इसमें जो है ना ताउन बहुत अच्छा किया CXO फोरम ने, और इसके साथ हमारे जो पार्टनर्स थे न्यू होराइजन, तो इन लोगों ने बहुत सारे IT के CIOs को जो है ना यहाँ पे इनवाइट किया है। और मकसद हमारा ये था कि ये CIOs आएँ, ये आके एकेडमिया के साथ बैठें, लेट्स टॉक टुगेदर, design a curriculum which is relevant to the industry. At present, the curriculum that is being taught in the universities is irrelevant. So the students who, after doing the bachelor's, 4 years of training, they have to go and do a house job in the industry. It takes about 6 months to understand the working of the industry. इस वक्त EFU कहती है कि 40 मेरे पास जो है ना नौकरियां मौजूद हैं, और EFU के जो CIO हैं वो मुझे कहने लगे कि हमारे और जो ग्रुप है उसके अंदर मेरे पास 400 इस वक्त वैकेंसीज मौजूद हैं, बट देयर इज़ नोबडी टू फिल अप दैट वैकेंसी, एंड दैट इज सिंपली बिकॉज द स्टूडेंट्स हु पास आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज दे आर नॉट टॉट एनीथिंग रेलिवेंट टू द इंडस्ट्री। तो उनको इंडस्ट्री लाती है, 6 महीने का ट्रेन करती है, और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर उनको वो यूज़फुल होते हैं इंडस्ट्री के लिए। तो हम कोई चीज़ ऐसी करना चाहते हैं कि इंडस्ट्री, जैसे कि अभी इमाम साहब ने बताया, मेंबर IT जो है मिनिस्ट्री ऑफ IT के, कि एक नई चीज़ शुरू हुई है, ये मुझे बहरिया यूनिवर्सिटी ने अभी 3 दिन पहले बताया था कि एकेडमिया जो है वो जैसे बाहर की तरफ होती है। फिनलैंड का एग्जाम्पल ये है कि फिनलैंड के अंदर 6 महीने प्रोफेसर जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और बाकी 6 महीने जो है वो इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। तो यहाँ का 6 महीने नहीं तो कम से कम जो समर वेकेशंस होते हैं 2 महीने के, तो फिनलैंड के पैटर्न के ऊपर 2 महीने वो यूनिवर्सिटी से निकल के और वो इंडस्ट्री में अगर काम करेगा तो उसके समझ में आएगा। कहाँ गए? ओह अच्छा, यू आर नॉट इन यूनिफॉर्म सो आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। वेरी वार्म वेलकम टू IG सिंध, Dr. Mushtaq Meher, and I am double happy to welcome him. I'm double happy to welcome him because he is not just the IG and he's not just responsible for the law and order of this province, but I'm more than happy to welcome him because he is a very dear friend of mine, and I've known him since 1983. He's my class fellow also. So thank you very much, Mushtaq Saab. We were waiting for you, and thank you very much. अच्छा, अब जो पर्पस था कि हमारा इसका कि एकेडमिया और यूनिवर्सिटी का जो हमारा पर्पस मिलाने का था वो ये था कि एक मैं छोटी सी और एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे अभी फिनलैंड की दी, तो ये जो है ना इस तरह से काम करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ $240 मिलियन इंडस्ट्री इन्वेस्ट करती है हार्वर्ड के अंदर एवरी ईयर। लास्ट ईयर 240 मिलियन इन्वेस्ट किया है। 30% ऑफ द टोटल ग्रांट, जो टोटल ग्रांट होती है 70% जो है वो गवर्नमेंट दे रही है, 30% जो है वो 240 मिलियन है। और उन्होंने लास्ट ईयर 790 पेटेंट्स बनाए हैं। जब भी बात हो रही थी कि सिर्फ रिसर्च नहीं करनी, पेपर्स नहीं पब्लिश करने, उसकी कोई रेलेवेंस होनी चाहिए इंडस्ट्री के साथ। 790 पेटेंट्स जो है ना लास्ट ईयर बनाए हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। और हार्वर्ड को फाइनेंस कौन कर रही हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज़ लाइक बोइंग, फोर्ड, नोवार्टिस, सनोफी, इंटेल, ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। ऑन टॉप ऑफ दैट दे इन्वेस्ट इन द यूनिवर्सिटीज़, और वहाँ से जो है ना वो रिसर्च होती है एंड दे कैपिटलाइज ऑन दैट। MIT का 2017 के अंदर 148 मिलियन जो है ना वो इंडस्ट्री ने पुट इन किया। लास्ट ईयर MIT के जो एलुमनाई है उसने 1.9 ट्रिलियन रेवेन्यू जनरेट किया है, जो डिफरेंट स्टार्टअप्स उन लोगों ने किए हैं। दे हैव देयर एलुमनाई हैव फॉर्म्ड 3,400 कंपनीज and they have employed 4.6 million people. When you invest in the universities, you get the return. तो ये आपस में फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर ये होता है कि 3 तरीके से जो है ना यूनिवर्सिटीज़ को फंड्स मिलते हैं। 1 फ्रॉम द गवर्नमेंट, नंबर 2 दे रेज मनी फ्रॉम द ट्यूशन फी, एंड नंबर 3 दे गेट इट फ्रॉम द इंडस्ट्री।
कराची यूनिवर्सिटी का एनईडी यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि इन्होंने एक स्मार्ट फ़ैन बनाया है। आई एम गोइंग टू कंक्लूड माय टॉक विद इन अ मिनट। मुझे ये खींचना था कि मुश्ताक साहब जब तक नहीं आते हैं तो एनईडी यूनिवर्सिटी ने एक स्मार्ट फ़ैन बनाया है। स्मार्ट फ़ैन ऐसे बनाया कि उनको एक छोटी सी कंपनी आई, उसने बताया गुजरांवाला से कि ये हमें स्मार्ट फ़ैन बना के दो। उन्होंने पहले बॉल बेयरिंग की फ्रिक्शंस को रिड्यूस किया। दैट इज़ हाउ दे रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन। फिर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंसर लगाया उसके अंदर। वो सेंसर ये करता है कि दैट इज़ मोशन सेंसिटिव। सो एज सून एज अ पर्सन लीव्स द रूम एंड देयर इज नो मोशन इन द रूम, द फैन स्विचेज ऑफ। नंबर 3 उन्होंने ये किया कि हीट सेंसर जो है ना वो उसमें एआई ने डाला। रात में ये होता है कि सर्दी लग रही होती है, आदमी लिहाफ ओढ़ लेता है, 12 बजे जो पंखा चलाता है 3 बजे 4 बजे सर्दी हो जाती है, पंखा तेज़ चलता रहता है। उन्होंने वो टेम्परेचर सेंसिटिव सेंसर लगाया, जब सर्दी होने लगती है तो वो पंखा स्लो हो जाता है। इसकी तरह से उन्होंने दे हैव रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन बाय 55%। इस वक्त पूरे मुल्क में 6% ऑफ द एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय फैंस ओनली। तो अगर आप 55% आप कम कर देते हैं तो ये आप एनर्जी बचा के पूरे लाहौर या पूरे पिंडी को आप फ्री में एनर्जी दे सकते हैं, इतनी एनर्जी बचती है। इसी तरह से हम एग्रीकल्चर के अंदर कर सकते हैं कि जब मैंने एनबीआई पे हमने काम करना शुरू किया तो आई वाज शॉक्ड टू लर्न दैट 35% ऑफ द फूड दैट वी प्रोड्यूस गोज वेस्ट, इट रॉट्स इन द फील्ड ओनली। ये मार्केट तक ही नहीं पहुंच पाती। 35% ऑफ द मिल्क डजंट रीच द मार्केट, इट गोज वेस्ट। और यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं। अगर सिंपल सी टेक्नोलॉजी आ जाती है, हम लोग फूड प्रिजर्वेशन की तरफ चले जाते हैं या कोल्ड स्टोरेज, कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो डेवलप करें। सिर्फ अच्छा इंसुलेशन सिस्टम डेवलप करना है कि दिन के अंदर जो है ना सोलर पैनल से चला लें, रात में बिजली की ज़रूरत ही नहीं हो, इतना अच्छा इंसुलेशन हो कि वो जो है ना 24 घंटे 12 घंटे कवर कर ले। 35% फूड दैट गोज वेस्ट दैट कैन बी सेव्ड एंड समबडी कैन यूटिलाइज इट। फिर हमारा आखिरी मकसद जो था वो ये था कि जब आजकल जो लोग खुदकुशियाँ करने लगे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि मोर देन एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आई एम अ सोशल वर्कर, तो हमने एक एकेडमी खोली है जिसके अंदर सखी हसन पे, और उसके अंदर हम लोग जो है ना बहुत ही कम फी, सब्सिडाइज्ड फ़ी के ऊपर हम लोग जो है ना 500 रुपये या 1000 रुपये में हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको ऐसा यूज़फुल सिटीजन्स बना रहे हैं कि वो अपना स्टार्टअप्स जो है ना वो कर सकते हैं कि 4 महीने 6 महीने के बाद वो 30-35 हज़ार खुद से कमा सकें। तो ये एक काम कर रहे हैं कि सोसाइटी को पे बैक करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि मैं चाहूँगा कि जॉइन हैंड्स विद अस, और इसमें हम सोसाइटी को बचाएं कि लोग, बहुत सारे लोग भूख के मारे खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आजकल आप लोगों ने एक वीडियो वायरल देखी होगी, हो रही है, जो लकी वन से आदमी ने जो ना छलांग लगा के। तो हमें वी हैव टू प्ले आवर पार्ट एंड दिस इज़ व्हाट IR नेक्स्ट इज़ फॉर। तो हम लोग मिलेंगे आगे। जो है ना मेरी अभी मिनिस्टर साहब से बात हो रही थी कि हम जो है ना एकेडेमिया, हम लोग अभी सब कमिटीज़ बनाएंगे, ब्लॉकचेन की अलग होगी, AI की अलग होगी, साइबर सिक्योरिटी की अलग होगी, अदर टेक्नोलॉजीज़, और एकेडेमिया और इंडस्ट्री को मिलाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, एंड वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दैट पॉलिसी टू द मिनिस्ट्री एंड टू द हायर एजुकेशन कमीशन। और मिनिस्टर साहब ने कहा है कि फिर वो ही इज़ गोइंग टू गेट दैट इम्प्लीमेंटेड इंशाल्लाह, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। और वो जो ड्रीम है हमारी, I am just keeping it alive. There is a Welsh word called hoil. Hoil का मतलब होता है fire in the belly. मैंने वेल्स में जब काम किया तो मुझे ये एक चीज़ मैंने सीखी थी, सिर्फ एक ही वर्ड सीखा है। वो वहाँ पे सर्दियों के अंदर ये करते हैं कि बेली के अंदर एक हॉट पॉट रखते हैं जस्ट टू कीप देमसेल्व्स वार्म, और बाहर जो लोग काम कर रहे होते हैं जैसे शेफर्ड्स होते हैं। तो मैंने जो है ना वो आई हैव केप्ट दैट थिंग अलाइव एंड आई एम कीपिंग इट वार्म। तो एहसन जी।